Dear participants, welcome to the third day afternoon session of this 6 days online course on teaching, testing, and evaluation for Manipuri and English teachers. As per the schedule, the afternoon session, the topic is use of ICT in teaching and testing of languages, including social media platform. This was supposed to be taken by Dr. Pankaj Trivedi, who is our OIC in TSI. Due to his busy schedule, he is a little bit busy with this schedule. So this session will be taken by our own colleague, Dr. Amit Kumar Jha. He is presently working as junior resource person, technical in NTS, National Testing Service India, for the past almost 4 years. Before that also he has worked for NTS in different languages, and he has a doctorate in text-to-speech for Maithili language, given by Wardha Mahatma Gandhi University, International University in Wardha from Maharashtra. He has a PhD in text-to-speech for Maithili language. Presently, he is working in NTS, and he will be taking on the session use of ICT in teaching and testing of languages. With this few introduction, I will hand over the session to Dr. Amit Kumar Jha, please. Thank you, Kashyap sir. Good afternoon, all friends. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Yeah, hello, sir. Just carry on, huh? Yeah, thank you, sir. Okay. So, I'm not able to speak in Manipuri, so sorry. I will explain everything in Hindi and English, mix bilingual methods. So let's start. So good afternoon. As Kashyap sir told that today I will explain about the use of ICT in teaching, testing of languages, including social media platforms. Okay. So first we will see what is ICT. Okay, I think all of you will aware about this terminology ICT. So ICT is there are three words in ICT. First is I, which means information. The other is C for communication, and the third one is T stands for technology. Okay, so first we will see what is information. तो हम लोग ये देखेंगे सबसे पहले कि इंफॉर्मेशन क्या होता है. Okay, so as we know the word informations, we are aware about these words. Okay, information means first we will see what is data. Okay, data क्या होता है कि कोई भी टेक्स्ट या नंबर्स और एनीथिंग इन द फॉर्म ऑफ इमेज आल्सो जो कंप्यूटर में हम लोग यूज करते हैं या जनरल लाइफ में भी हम लोग डेटा का यूज करते हैं. जब हम लोग डेटा पर कुछ प्रोसेसिंग करते हैं तो वो क्या कन्वर्ट हो जाता है इंफॉर्मेशन में, और फर्दर इंफॉर्मेशन पे भी प्रोसेसिंग करते हैं तो वो क्या हो जाता है, नॉलेज हो जाता है. ओके, जस्ट हम लोग जनरल लाइफ से एक एग्जांपल लेते हैं कि वाटर, अगर सिर्फ हम बोले वाटर अर्थात पानी तो वो क्या हो गया, डेटा हो गया. लेकिन जब हम इस पे और प्रोसेस करते हैं, मतलब वाटर के बारे में और थोड़ी जानकारी देते हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल ड्रिंकिंग वाटर, क्या हुआ, ड्रिंकिंग वाटर. तो ड्रिंकिंग वाटर का मतलब क्या हो गया कि हम लोग पानी के बारे में, वाटर के बारे में और ज्यादा इंफॉर्मेशन कर रहे हैं और ज्यादा प्रोसेसिंग कर रहे हैं, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, इंफॉर्मेशन हो जाएगा. और जब इंफॉर्मेशन पे फर्दर हम लोग प्रोसेसिंग करते हैं तो वो क्या कन्वर्ट हो जाता है, वो नॉलेज में कन्वर्ट हो जाता है. जैसे अगर आपके पास बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन होगा तो पूरा इंफॉर्मेशन एकत्र होके आपको क्या हो जाएगा, उस चीज के बारे में नॉलेज हो जाएगा.
इसी एग्जांपल को हम आगे ले जाते हैं। जैसे हम बोले कि हमें साफ पानी पीना चाहिए, ठीक है, पहले क्या था, पानी था, फिर हम लोग क्या बोले, पीने का पानी, ड्रिंकिंग वाटर। तो क्या हुआ, पानी से एक स्टेप हम और आगे बढ़े, और जब उससे एक स्टेप और हम आगे बढ़ते हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल हमें साफ पानी पीना चाहिए, तो ये हमारा क्या हो गया, ये नॉलेज हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग नॉलेज को देखते हैं। दूसरा टर्म जो है आईसीटी में, जिसको हम लोग बोलते हैं कम्युनिकेशन। तो आप सभी कम्युनिकेशन के बारे में जानते होंगे, अवेयर होंगे इस वर्ड से। कम्युनिकेशंस के लिए एसेंशियली आपको सबसे पहले दो व्यक्ति होना चाहिए, ठीक है, या दो होना चाहिए। एक होगा जो इंफॉर्मेशन क्या करेगा, सेंड करेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंडर, ठीक है। सेकेंड जो होता है दूसरे एंड पर, वो क्या होता है, रिसीवर। जो व्यक्ति इंफॉर्मेशन रिसीव करेगा, गैदर करेगा, वो क्या हो गया, रिसीवर। थर्ड वन क्या होता है, मैसेज। जैसे इंफॉर्मेशन का मतलब ही है कि एक कम्युनिकेशन का मतलब ही है कि एक मैसेज को आप एक जगह से दूसरे जगह तक भेजते हैं, यही कम्युनिकेशन होता है ना। तो क्या हो जाएगा, वो मैसेज। जो इंफॉर्मेशन हम भेजते हैं या जो चीज हम सेंडर सेंड करता है और रिसीवर रिसीव करता है, उसको हम लोग बोलते हैं मैसेज। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं आपको बता रहा हूं, आप लोग कंफर्ट है ना हिंदी और इंग्लिश के साथ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. ओके, Yes, is थैंक यू। तो हम लोग बात कर रहे हैं सेंडर के बारे में और रिसीवर और मैसेज के बारे में। क्या मैसेज हुआ, जो इंफॉर्मेशन हम लोग या जो चीज हम लोग एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं, वो मैसेज हुआ। फिर आप जानते हैं कि मैसेज भेजने के लिए या कम्युनिकेशन करने के लिए हमें एक मीडियम चाहिए, ठीक है। मीडियम मतलब जिसकी मदद से हम लोग क्या करेंगे, जैसे हम और आप बात कर रहे हैं, तो अभी हमारा एक मीडियम, कैसे, मैं सेंडर हुआ, आप क्या हुए, रिसीवर हुए। मैसेज इसमें क्या हुआ कि हम लोग आईसीटी पर बात कर रहे हैं, तो आईसीटी क्या होगा, मैसेज होगा, ओके। और ये मीडियम, जैसे हम लोग इंटरनेट के थ्रू जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मीडियम। और आप तक मैसेज कम्युनिकेट हो रहा है, उसके लिए, उसके बदले में आप लोग जो बताते समय पूछा, आप समझ रहे हैं कि नहीं, ठीक है, तो आपने कम्युनिकेट किया, दैट इज कॉल्ड रिस्पॉन्स। तो ये पूरा कम्युनिकेशन है, जिसमें फर्स्ट एंटिटी सेंडर है, सेकेंड वन इज रिसीवर, थर्ड वन इज मैसेज, फोर्थ वन इज मीडियम एंड फिफ्थ वन इज रिस्पॉन्सेज। तो कम्युनिकेशन होने के लिए हमें ये 5 चीज जरूरत है, मतलब नेसेसरी है। अगर इसमें से एक भी चीज नहीं होगा, एक भी चीज अगर अब्सेंट होगा, फॉर एग्जांपल अगर सेंडर नहीं होगा तो कम्युनिकेशन नहीं हो सकता, अगर कोई रिसीवर नहीं होगा तो कम्युनिकेशन नहीं हो सकता। तो कम्युनिकेशन करने के लिए ये 5 चीजें जो है वो क्या है, एसेंशियल है, ओके। तो थर्ड है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी के बारे में आपको बताने की जरूरत नहीं, आप सभी वाकिफ हैं। विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी क्या हुआ, जो ह्यूमन लाइफ है वो बहुत इजी हो गया, ठीक है। सेम चीज हम लोग आगे बात करेंगे कि एजुकेशन में टेक्नोलॉजी का क्या यूज है, तो उसके बारे में आप बताएंगे कि पहले जो एजुकेशन देना होता था वो मुश्किल होता था, ठीक है, या बहुत लिमिटेड लोगों तक हम अपना एजुकेशन दे पाते थे। लेकिन आईसीटी के आ जाने से जो ये रेंज था एजुकेशन देने का, वो क्या हो गया, बड़ा हो गया, विस्तृत हो गया, लार्ज वे में हम लोग कर सकते। जैसे देखिए, हम और आप अभी आईसीटी के माध्यम से ही आपस में जुड़े हुए हैं, नहीं तो क्या होता कि हम लोग को फिजिकल एक जगह प्रेजेंट होना पड़ता, फिर हम लोग अपने एजुकेशन को या कोई भी कम्युनिकेशन को एक जगह से दूसरे जगह कर सकते थे। अब मीडियम क्या हो गया, बहुत लार्ज हो गया। तो ये हमारा आईसीटी का बेनिफिट है, टेक्नोलॉजी का बेनिफिट है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि आईसीटी टूल्स जो है उसका क्या यूटिलाइजेशन है, उसके टूल्स क्या है और उसका क्या यूटिलाइजेशन है। आप सभी वाकिफ हैं आईसीटी के जो टूल्स हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल इंटरैक्टिव मल्टीमीडिया, ओके, मल्टीमीडिया चाहिए, कंप्यूटर्स, सभी कोई कंप्यूटर के बारे में जान रहे हैं, ऑडियो डिवाइसेस, इंटरनेट, टेलीविजन, मोबाइल गैजेट्स और टैबलेट, सोशल इंटरफेस और इंटरैक्टिव व्हाइट बोर्ड। इसके अलावा और भी बहुत सारे टूल्स हैं जिसका हम लोग यूज करते हैं किसमें,
आईसीटी में, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में, स्पेशली कब, जब हम लोग यहां पे हमारा मेन फोकस जो होगा वो होगा किस पर, लैंग्वेज टीचिंग पर। ओके, तो इसके बारे में जानने के लिए पहले हम लोग को ये जानना होगा मल्टीमीडिया क्या होता है। ओके, व्हाट इज मल्टीमीडिया। तो जैसा कि आप नाम में देख रहे हैं, दो वर्ड है, मल्टी और मीडिया, मल्टीपल और मीडिया, इस दो वर्ड से बना है मल्टीमीडिया। ओके, मीडिया के बारे में आपको पता है, मीडिया क्या है, प्लूरल फॉर्म ऑफ मीडियम। ओके, मीडियम एक वर्ड है, जैसे हम लोग पीछे बात किए कि कम्युनिकेशन करने के लिए एक मीडियम चाहिए होता, तो मीडियम का प्लूरल फॉर्म क्या है, मीडिया है। ओके, तो मल्टीमीडिया का मतलब हुआ कि ऐसा मीडिया, ठीक है, जिसमें कई सारे मीडिया हो। ओके, जस्ट फॉर एग्जांपल देखिए, मल्टीमीडिया में क्या क्या होता है। टेक्स्ट चीज हो सकती है उसमें, जिसके बारे में आगे आपको बताऊंगा। इमेजेस के फॉर्म में हो सकता है मल्टीमीडिया, एनिमेशन के फॉर्म में हो सकता है, ठीक है, वीडियोस के फॉर्म में हो सकता है। इस तरीके से ये सारा चीज क्या हुआ, मल्टीमीडिया, जिसमें हम लोग ग्राफिकल वे में, ग्राफिक्स और ऑडियो दोनों के रूप में, या इमेज या कोई टेक्स्ट, इसके फॉर्मेट में हम लोग कम्युनिकेट करते हैं। ओके, तो मल्टीमीडिया का जो सबसे आप बोल सकते हैं कि बेसिक चीज है, सबसे पहला पॉइंट चीज है, वो है न्यूज़पेपर। ओके, न्यूज़पेपर आप लोग सभी जानते होंगे, न्यूज़पेपर में क्या होता है, न्यूज़पेपर के थ्रू भी नॉलेज एक जगह से दूसरे जगह तक जाता है। न्यूज़पेपर का यूज ही है कि एक न्यूज को एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाना। ओके, न्यूज़पेपर में क्या हम लोग यूज करते हैं, टेक्स्ट होता है, आपको पता है, सेकेंड इमेज, थर्ड वन ग्राफिक्स, ठीक है, इमेज का ही एडवांस वर्जन को हम लोग ग्राफिक्स बोलते हैं। तो इसके रूप में क्या होता है, इंफॉर्मेशन होता है, जो कि मेजर सोर्स है इंफॉर्मेशन का लोगों के लिए, जन सामान्य के लिए। उसके बाद हम लोग जो देखते हैं 20th सेंचुरीज में आकर के, इससे पहले इमेज के फॉर्म में न्यूज़पेपर होता था। जब आप 20th सेंचुरीज देखते हैं तो क्या हमारे सामने आया, रेडियो आया। सबसे पहले रेडियो के थ्रू हम लोग क्या करते हैं कि वॉइस को, आवाज को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाते थे, तो ऑडियो सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह तक कम्युनिकेट करते थे। जब टेक्नोलॉजी और थोड़ी एडवांस हुई तो क्या आ गया उसके जगह, टेलीविजन, जो आप लोग, जिसको हम लोग शॉर्ट में टीवी बोलते हैं। इसके द्वारा क्या हुआ कि हम लोग पहले जहां रेडियो में हम लोग सिर्फ ऑडियो सुनते थे, टेलीविजन के आने से क्या हुआ, ऑडियो और वीडियो दोनों हम सुन पा रहे हैं। ठीक है, इसके थ्रू हम लोग क्या करने लगे, न्यूज को भेजने लगे। सॉरी, इसके बाद मल्टीमीडिया का इतना यूज होने के बाद में और एडवांस वर्जन में हम लोग क्या करने लगे कि एजुकेशन, इन एजुकेशन मल्टीमीडिया इज यूज टू प्रोड्यूस कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग कोर्स। ओके, properly that is called CBT and reference book like encyclopedia or dictionary. आप जो now you can see there are lots of e-dictionary. Okay, डिक्शनरी क्या होता है, जो हार्ड कॉपी में आपके साथ हो। ठीक है, जैसे कि आप ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी देखते हैं एग्जाम्पल के लिए, वो आपका क्या हो गया, डिक्शनरी हो गया। लेकिन ई डिक्शनरी मीन्स इलेक्ट्रॉनिक डिक्शनरी, जिसका आप लोग यूज कंप्यूटर की मदद से करते हैं। तो जब टेक्नोलॉजी और डेवलप हुआ तो टेलीविजन के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आया वो क्या आ गया, कंप्यूटर आ गया। ओके, और एक नया चीज आप देखिए, पहले मल्टीमीडिया का जो यूज होता था वो सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए यूज होता था। ठीक है, इंटरटेनमेंट या न्यूज के लिए। आप अगर देखिए रेडियो का पहले यूज क्या था कि इंटरटेनमेंट, जैसे आप रेडियो में सुनते आपको गाना सुनाया जाता था, उसके अलावा आप न्यूज सुन सकते थे, कहानी सुन सकते थे। टेलीविजन के साथ भी वही हुआ, पहले आप उसमें मूवीज, सीरियल या फिर न्यूज, ये चीज होता था। लेकिन जैसे एक नया फील्ड इमर्ज हुआ जिसमें एजुकेशन और मल्टीमीडिया, यानी कि इंटरटेनमेंट और एजुकेशन को दोनों को मिक्स करके एक नया टर्म बना जिसको हम लोग बोलते हैं एडुटेनमेंट। ठीक है, एजुकेशन है और इंटरटेनमेंट है दोनों, मतलब ऐसा इंटरटेनमेंट का साधन, सोर्स, जिसके द्वारा हमें क्या होता है, एजुकेशन प्राप्त होती है।
आज आप देख पाए बहुत सारे आप गेम्स देख सकते हैं, बहुत सारे आप जैसे कि नेशनल ज्योग्राफी होता है, वहां पे आप देखते हैं कि आपको डिस्कवरी चैनल हो गया, वहां पे क्या होता है, डिस्कवरी चैनल में बहुत सारे शो होते हैं जिसमें आपको इंटरटेनमेंट की मदद से एजुकेट किया जाता है। ठीक है, कुछ स्टोरी या कुछ वीडियोस दिखा करके आपको कुछ क्या बोलते हैं, इथिक्स सिखाया जाता है, कुछ नॉलेज दिया जाता है, कुछ आप गैदर करते हैं। तो ये जो फील्ड हो गया इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एडुटेनमेंट। मल्टीमीडिया में जैसा मैं आपको पहले बताया कि मल्टीमीडिया के जो सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है, उसमें बेसिकली आईसीटी या मल्टीमीडिया का मतलब हो गया आईसीटी से रिलेटेड जो मल्टीमीडिया के सॉफ्टवेयर होते हैं उसमें क्या क्या चीज होता है, जैसा मैं आपको पहले बताया, वहां टेक्स्ट होता है, ग्राफिक्स होता है, ऑडियो होता है, वीडियो होता है और एनिमेशंस होता है। ठीक है, आप देख पा रहे हैं पीपीटी में, एजुकेशनल सॉफ्टवेयर दैट इन्वॉल्व एनिमेशंस, साउंड एंड टेक्स्ट इज कॉल्ड मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर। ओके, अब हम लोग चलते हैं मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर जो पहले यूज करते थे वो किस फॉर्म में होता था, सीडी या डीवीडी के फॉर्मेट में होता था। ठीक है, आप लोग भी बहुत सारे लोग हैं जो यूज करते होंगे सीडी। सीडी के बारे में मुझे लगता है कि लगभग लोग जानते होंगे। सीडी मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क, जो कि पहले हम लोग सीडी ड्राइव होता था जिसके थ्रू हम लोग सीडी को चलाते थे, जिसमें वीडियोज होता था, ऑडियो फाइल होता था। हम लोग एक जगह से दूसरी जगह तक डेटा को ट्रांसफर करने के लिए, एक जगह दूसरी जगह डेटा को ले जाने के लिए सीडी ड्राइव का या सीडी डिस्क का यूज करते थे। ठीक है, सीडी से और जब टेक्नोलॉजी एडवांस हुई तो हम लोग क्या यूज करने लगे, डीवीडी, दैट इज कॉल्ड डिजिटल वीडियो डिवाइस। अब क्या होने लगा, डीवीडी से भी अब हम लोग और थोड़ा एडवांस आए तो हम लोग पेरिफेरल डिवाइसेस यूज करने लगे, जिसको हम लोग यूएसबी डिवाइस भी बोलते हैं, या फिर अगर आप और बोले तो पेन ड्राइव यूज करने लगे हम लोग, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क यूज करने लगे। और अगर टेक्नोलॉजी थोड़ी एडवांस हुई तो हम लोग क्लाउड स्टोरेज यूज करने लगे, क्लाउड कंप्यूटिंग यूज करने लगे। क्लाउड स्टोरेज मतलब जैसे आप गूगल ड्राइव देखते हैं, ठीक है, एक स्पेस हो गया जहां पे हम लोग अपने चीजों को अपलोड करते हैं, फिर जब जरूरत पड़ती है उसको डाउनलोड करते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती गई, टेक्नोलॉजी डेवलप होता गया, हम लोग क्या करने लगे, मल्टीमीडिया पर, एडुटेनमेंट पर, आईसीटी पर ज्यादा से ज्यादा क्या होता गया, हम लोग इजी होता गया एजुकेशन देना, चीजों को सिखाना। लैंग्वेज टीचिंग में बेसिकली ये इसलिए बहुत ज्यादा उपयोगी होता है क्योंकि लैंग्वेज टीचिंग ये नहीं है कि हम कुछ पढ़ ले के हम लैंग्वेज नहीं सीख सकते। ओके, कोई बुक पढ़ के हमें नॉलेज नहीं आता। इसीलिए आप देखते हैं कि जब कहीं पे लैंग्वेज टीचिंग की बात होती है वहां पे लैंग्वेज लैब की बात आती है। ओके, लैंग्वेज लैब क्या होता है, लैंग्वेज लैब बेसिकली होता है जहां पे आप टेक्नोलॉजी या आईसीटी के मीडियम की मदद से लैंग्वेज सिखाते हैं। आप में से लगभग लोग जो है लैंग्वेज लैब से वाकिफ होंगे। लैंग्वेज लैब में क्या होता है, कंप्यूटर होता है, वहां पे लैंग्वेज से रिलेटेड सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है उस कंप्यूटर में, और उस लैंग्वेज के सॉफ्टवेयर की मदद से हम लोग क्या करते हैं, बच्चों को, स्टूडेंट को लैंग्वेज सिखाते हैं। उसमें वो वीडियो के फॉर्म में होता है, ऑडियो के फॉर्म में होता है लेसन्स, जिससे क्योंकि माना यह जाता है कि जो चीज हम पढ़ते हैं कंपैरेटिवली जो चीज हम देखते या सुनते हैं वो जल्दी सीखते हैं। ठीक है, जो विजुअल चीजें हैं या जो आप साउंड सुनते हैं वो ज्यादा आपको इजीली एक्सेसिबल होता है, इजीली आप उसको और लंबे समय तक याद रख सकते हैं। उसके बाद मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस जो है ये कई टाइप्स के होते हैं। कैसे कैसे एप्लीकेशंस हम यूज करते हैं क्लासरूम में, लीनियर और नॉन लीनियर, सिंपल और एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स। जैसे आप सिंपल की बात करें, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, जैसे हम अभी पीपीटी आपको दिखा रहे हैं, ये भी क्या है, एक टाइप का मल्टीमीडिया हुआ। ओके, जैसे हम लोग वेब पेज आप देख पाते होंगे, बहुत सारे ब्लॉग्स होते हैं लैंग्वेज टीचिंग के लिए। ओके, मल्टीमीडिया गेम्स होते हैं, उसके अलावा कुछ वीडियोज होते हैं, ये सब सारा चीज क्या है, मल्टीमीडिया के एप्लीकेशन है। मल्टीमीडिया इन टीचिंग एंड लर्निंग,
आप जैसा कि देख पा रहे हैं टीचिंग एंड लर्निंग में मल्टीमीडिया का क्या क्या बेनिफिट है। तो आप देखिए सबसे पहले क्या है, टू प्रोवाइड एब्यूडेंट इंफॉर्मेशन, और क्या है, टू स्टिमुलेट स्टूडेंट्स अटेंशन एंड इंटरेस्ट। जैसा कि मैं आपको पहले बता रहा हूं कि जो भी चीज ग्राफिक्स में होता है, इमेज के फॉर्म में होता है, वो टेक्स्ट से ज्यादा आपको अट्रैक्ट करता है। ओके, और जितना ज्यादा आपका अटेंशन खींचता है, जितना ज्यादा आपका इंटरेस्ट वो अपनी ओर ले जाएगा, उतना ज्यादा आप उसके बारे में जिज्ञासु होंगे, आप उतना ज्यादा उसके बारे में सीखना चाहेंगे, और उतनी जल्दी आप उस चीज को सीख सकते हैं, और आपका इंटरेस्ट उसके प्रति बढ़ सकता है। और क्या है, टू प्रमोट सेल्फ रेगुलेटिंग लर्निंग। मल्टीमीडिया के मदद से क्या होता है कि आप सेल्फ लर्निंग की चीजें आती है, आप खुद से सीखते हैं। ठीक है, बहुत सारे पोर्टल बने हुए जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा, जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, एक लैंग्वेज या लैंग्वेज ही नहीं, कोई भी एजुकेशन का कुछ भी नया चीज आप सीख सकते हैं। ठीक है, टू प्रमोट ट्रांस कल्चरल कम्युनिकेशन। ठीक है, ट्रांस कल्चरल कम्युनिकेशन को बढ़ावा देने के लिए भी क्या चीज यूज होता है, मल्टीमीडिया यूज होता है। टू प्रमोट इंटरेक्शन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट्स। जैसे आप यहां देखिए, अभी मल्टीमीडिया के होने से या आईसीटी के नियम्स होने से, जैसे हम और आप करीब हजारों किलोमीटर दूर बैठे हैं, ठीक है, लेकिन हम लोग आपस में क्या कर पा रहे हैं, कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। ये कम्युनिकेट हम लोग कैसे कर पा रहे हैं, यूज ऑफ आईसीटी डिवाइस की मदद से। किसकी मदद से, आईसीटी की डिवाइस, जैसे हम कंप्यूटर है, वेब कैम के सामने हम बैठे हैं, आप में से कई लोग कंप्यूटर के साथ बैठे होंगे, कई लोग हो सकता है लैपटॉप पे बैठे हो, कई लोग मोबाइल से इस लेक्चर को सुन रहे हो। तो कहने का मतलब क्या है कि यू कैन कम्युनिकेट विद द हेल्प ऑफ आईसीटी डिवाइसेस। ओके, नेक्स्ट क्या है, टू इंप्रूव इफिशियंसी ऑफ द टीचर्स। तो आईसीटी मीडियम के मदद से आप लोग क्या कर सकते हैं, टीचर का जो एफिशिएंसी है उसको क्या कर सकते हैं, आप इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे अगर मैं सिर्फ बोलता रहता, ठीक है, सिर्फ मेरी आवाज आपको जाती रहती, तब आप जितना समझते, और अभी मैं आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के द्वारा कुछ बता रहा हूं, तो हो सकता है जैसे सारे पॉइंट्स को अगर मैं डील ना भी करूं तो आप पीपीटी को देख करके समझ सकते हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को देख करके आप इसके बारे में समझ सकते हैं। जैसे और एडवांस में हम लोग जाते हैं, फॉर एग्जांपल ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, कल क्या होगा, ये वीडियो अपलोड होगा मान लीजिए फॉर एग्जांपल यूट्यूब पे। तो आज आप सीखे, कल अगर आपको फिर से इसके बारे में जानने की इच्छा हो, जिज्ञासा हो, तो आप दोबारा उसको देख सकते हैं। तो ये सारे बेनिफिट जो है वो किसका बेनिफिट है, मल्टीमीडिया का बेनिफिट है। मल्टीमीडिया में क्या होता है, टेक्स्ट है, ग्राफिक्स है, ऑडियो है, वीडियो है, एनिमेशन है, और इंटरेक्टिव सेशंस है। क्या है इसके बारे में एक एक करके हम देखते हैं। टेक्स्ट, ऑल ऑफ ऑल मल्टीमीडिया एलिमेंट, टेक्स्ट इज द इजीएस्ट टू मैनिपुलेट। टेक्स्ट को मैनिपुलेट करना इजी है, मींस क्या हुआ कि टेक्स्ट को क्रिएट करना इजी है, टेक्स्ट पे प्रोसेसिंग करना इजी होता है, और टेक्स्ट डेवलप करना और जो मल्टीमीडिया की चीजें हैं उसके कंपेयर में इजी होता है, मुझे कम रिसोर्स की जरूरत होती है। अब क्या है कि गाइडलाइंस है कुछ, जब आप टेक्स्ट डेवलप कर सके, तो सबसे फर्स्ट क्या है कि आपका टेक्स्ट क्या होना चाहिए, ब्रीफ होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। ये नहीं कि आपका टेक्स्ट पूरा भरा हुआ है, सिर्फ टेक्स्ट ही टेक्स्ट है, नहीं, वो क्या होना चाहिए, संक्षिप्त होना चाहिए, अर्थात ब्रीफ में होना चाहिए। यूज एप्रोप्रिएट फॉन्ट। क्या चीज है, एप्रोप्रिएट फॉन्ट के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्या है, कंसीडर डिफरेंट टाइप्स एंड स्टाइल। आप जब भी यूज करें टेक्स्ट को, तो अगर आप सिर्फ एक स्टाइल या एक टेक्स्ट यूज करते हैं तो उस टाइम वो क्या होता है, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं होता। देखिए, पूरा मल्टीमीडिया का जो गेम है, पूरा खेल जो मल्टीमीडिया का है, वो क्या है कि स्टूडेंट को अट्रैक्ट करना अपनी ओर। जब आप स्टूडेंट को अट्रैक्ट करेंगे अपनी ओर, फिर वो सीखने के प्रति जागरूक होगा, वो सीखेगा। ओके, उसके बाद क्या है, मेक द टेक्स्ट रीडेबल। आपका टेक्स्ट जो होना चाहिए वो रीडेबल होना चाहिए। बाकी और भी पॉइंट्स है, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट,
टेक्स्ट के बाद जो एक लेवल और एडवांस होता है वो कहलाता है ग्राफिक्स। तो मीन्स ग्राफिक्स इन मल्टीमीडिया एप्लीकेशन। आपको पता है ग्राफिक्स क्या होता है? जो आप ग्राफ वर्ड से बनाए, जैसे जो आप इमेज के थ्रू, ग्राफिक्स के थ्रू दिखा पाए। ग्राफिक्स भी दो टाइप के होते हैं जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। इसका जो मेन होता है, ग्राफिकल इमेज आर यूज्ड टू ऐड एम्फेसिस, डायरेक्ट अटेंशन, इलुस्ट्रेट कॉन्सेप्ट एंड प्रोवाइड बैकग्राउंड कंटेंट। अगर किसी चीज के बारे में आप, जैसे फॉर एग्जांपल आप एक बच्चे को बता रहे हैं किसी पक्षी के बारे में, ठीक है, जैसे आप इमेज में देख पा रहे हैं ये क्या है, एक चिड़िया, एक बर्ड है। आप अगर किसी बता दीजिएगा तो वो उतना नहीं समझ पाएगा, लेकिन जब आप उसी चीज का बच्चों को इमेज दिखाते हैं कि देखो बच्चों ये क्या, एक बर्ड है, इसके बारे में इसके फीचर्स को बताते हैं, इसके डिफरेंट क्या बोलते हैं ऑर्गन्स को बताते हैं, तो ग्राफिक्स के मदद से क्या होता है कि बच्चे जल्दी सीखते हैं। ठीक है, आप जैसे दूसरा हो गया, आप बिटमैप ग्राफिक्स की बात करते हैं या ड्रॉ टाइप्स की बात करते हैं। तो आप जैसे अगर किसी को बता रहे हैं कि ये, अगर आपको फॉर एग्जांपल बच्चों को बताना है कि सर्कल क्या होता है, आप उसको डिफाइन कर दीजिए, बच्चे उतना नहीं समझेंगे, लेकिन अगर वही सर्कल का आप उनको इमेज दिखा देते हैं, ठीक है, जैसे वो छोड़िए, जैसे आपको बताना हो, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपको बताना हो गाय क्या होती है, काऊ क्या होता है, आप काऊ के बारे में बताए कि उनको 4 पांव होता है, एक पूंछ होता है, ठीक है, एक सींग, 2 सींग होता है, वो उतना नहीं समझेंगे। लेकिन अगर आप उसका इमेज उसको दिखा देते हैं, उसका ग्राफ दिखा देते हैं, तो वो क्या होता है, वो इजिली समझ जाता है उस चीज को। तो ये एक बेनिफिट है मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस का। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एक और एडवांस वर्जन जिसको हम लोग बोलते हैं ऑडियो। इमेज से भी ज्यादा लोग किससे सीखते हैं, ऑडियो से, सुन करके। जैसे आप मुझे अभी सुन पा रहे हैं, तो सुन करके आप क्या है, किसी चीज को ज्यादा जल्दी कैच करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखते होंगे लैंग्वेज टीचिंग की बात करते हैं, लोगों को लैंग्वेज नहीं मालूम होता, लेकिन जैसे हिंदी बहुतों को नहीं मालूम है, लेकिन हिंदी सॉन्ग वो सुनते हैं, समझ नहीं पा रहे, लेकिन उनको सॉन्ग याद हो जाता है। कैसे? तो ये जो बेनिफिट है, ये ऑडियो की बेनिफिट है कि गाना हमें जल्दी याद होता है, ठीक है, गाने के बोल जो है वो जल्दी याद हो जाते हैं। इसीलिए क्लासरूम लैंग्वेज टीचिंग में जब बात आती है तो वहां प्रमोट किया जाता है कि आप अपने स्टूडेंट को कुछ उस लैंग्वेज के जो वीडियोज हैं, जो ऑडियो फाइल है, वो आप बच्चों को सुनाइए, ठीक है। और उसका भी है कि आप बेसिक लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक जाइए। जैसे जो ऐसे ऑडियो जिसमें सिंपल सिंपल वर्ड्स, जैसे कार्टून वगैरह के जो ऑडियो होते हैं वो सुनाइएगा, तो वो जल्दी सीखेगा, क्योंकि उसमें जो वर्ड होता है वो इजी वर्ड यूज किया जाता है कार्टून्स में, ठीक है। अब जैसे आप देखिए, अगर हिंदी की बात मैं करता हूँ फॉर एग्जाम्पल के लिए, कि रामायण में जो हिंदी, रामायण एक सीरियल है, उसमें जो हिंदी यूज हुआ है और एक कार्टून में जो हिंदी यूज हुआ है, तो रामायण की जो हिंदी है, जो संस्कृत वाली हिंदी जिसमें तत्सम शब्द ज्यादा है, वो समझना मुश्किल है कंपेरेटिवली किसके, कि कोई आपको सामान्य बोलचाल वाली भाषा के जो कार्टून है, ठीक है। तो इस तरीके से कहने का मतलब है आप उनको ऑडियो फाइल सुनाने से इजी होता है टीचिंग करना। ऑडियो से भी एक स्टेप अब जिसको हम लोग बोलते हैं वीडियो। वीडियो में क्या होता है कि आप देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। तो ये वीडियो जो है वो मल्टीमीडिया का सबसे पावरफुल आप बोल सकते हैं मीडियम है। रीजंस क्या है, वीडियो क्लिप्स कैन एडिटेड इजिली। आप जब भी क्लासरूम टीचिंग की बात करते हैं, मल्टीमीडिया टीचिंग की बात करते हैं, आईसीटी टीचिंग की बात करते हैं, लैंग्वेज टीचिंग की बात करते हैं, तो वहां पे सबसे जो क्या बोलते हैं बेस्ट वे है वो क्या है, वीडियो के द्वारा आप लैंग्वेज टीचिंग करें। और इसके साथ कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान रखने से, आप वीडियो डिजाइन कर रहे हैं, आप वीडियो डेवलप कर रहे हैं फॉर एग्जांपल मणिपुरी लैंग्वेज सिखाने के लिए, तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि हम किस लेवल के स्टूडेंट के लिए वीडियो बना रहे हैं, उसमें किस प्रकार के
शब्दों का प्रयोग करना है। उसके साथ में आपको क्या यूज करना है, सबटाइटल्स का यूज करना है। सबटाइटल्स यूज करने से क्या बेनिफिट है कि अगर कोई व्यक्ति सुन रहा है, उसको कोई स्टूडेंट जो है उसको सुन रहा है, तो साथ में वो सबटाइटल पढ़ेगा भी तो उसको मतलब समझ में आएगा। ठीक है, और भी कुछ पॉइंट्स है जिसके बारे में आपको आगे बताऊंगा। इसके बाद और जो हम लोग यूज करते हैं इजिली, एनिमेशंस का यूज करना चाहिए। एनिमेशंस यूज करने का जो सबसे ज्यादा मेरे हिसाब से, या बाकी आपको मालूम होगा कि बेनिफिट है, जैसे आप स्क्रिप्ट सिखा रहे हैं बच्चों को, ओके, मणिपुरी स्क्रिप्ट आप सिखा रहे हैं, तो अगर कोई ऐसा लैंग्वेज है जिसका स्क्रिप्ट अननोन है उस स्टूडेंट के लिए, ठीक है, तो एनिमेशन की मदद से आप उनको क्या सिखा सकते हैं कि हैंड मूवमेंट कैसे होगी। जैसे आप कोई चीज लिख रहे हैं, ठीक है, जैसे आपको, जैसे फॉर एग्जांपल मैं हिंदी से लेता हूं या इंग्लिश से लेता हूं, ए लिखना है, तो बच्चों को पता हो कि ए लिखने के लिए हमारा हैंड का मूवमेंट जो होगा, पहले डाउन से एक एरो, मतलब एक लाइन अप जाएगा, फिर ऊपर से एक लाइन डाउन आएगा, फिर बीच में एक लाइन होगा। ठीक है, जैसे एक लाइन ये ऊपर गया, फिर इधर अब आप कर्सर देख पा रहे हैं नीचे करना है, फिर बीच में एक एरो देना है। तो कहने का मतलब है कि इसको आप कैसे सिखा सकते हैं, अगर आप टेक्स्ट में सीधा ये लिखा हुआ दिखा दे तो बच्चों को मालूम नहीं चलेगा कि लाइन कैसे खींचना है, ड्रॉ करना है। तो इस चीज को आप एनिमेशन की मदद से, 2 डायमेंशनल एनिमेशन की मदद से इजिली आप उनको बता सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो मल्टीमीडिया है उसमें आपको ये दिखाया गया है कि आप मल्टीमीडिया में आप प्ले बटन होता है, स्टॉप बटन होता है, आप कहीं पे उसको रोक सकते हैं, किस तरीके से यूज करते हैं मल्टीमीडिया। जैसे आप आज के समय में देखिएगा बहुत सारे यूट्यूब वीडियो जो कि आपको मिल जाएगा मणिपुरी लैंग्वेज टीचिंग के लिए या कोई भी लैंग्वेज टीचिंग के लिए। तो वो सारा क्या है कि आपका एनिमेशंस के मदद से बहुत सारे वीडियोस बने हुए मिलेंगे, बहुत सारे वीडियोस रिकॉर्डेड आपको मिलेंगे, बहुत सारे वीडियो देखिएगा आप बोर्ड का यूज किया गया हो, और एडवांस आप देखते हैं तो स्मार्ट क्लासरूम या स्मार्ट बोर्ड का यूज किया हुआ गया होगा। तो कहने का मतलब ये है कि आप मल्टीमीडिया की मदद से चीजों को, देखिए जो आप क्लासरूम में पढ़ाते हैं उसको और इजी तरीके से और इफेक्टिव वे में आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, आप सिखा सकते हैं बच्चों को। जो हम लोग यूज करते हैं सबसे बेसिक मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस क्लासरूम टीचिंग में सबसे ज्यादा वो क्या होता है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन यानी कि पीपीटी का यूज करते हैं। क्या क्या बेनिफिट है आप इसको देख पाएंगे। प्रिपेयर ए स्टूडेंट फॉर द फ्यूचर, it shows them how to use technology to communicate and collaborate in their future careers. PPT increase students engagement and motivations. आप ICT या पावर पॉइंट का यूज करके स्टूडेंट को क्या कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं। Provides current information and wider access. And the last one is make learning more fun. जैसे आप मल्टीमीडिया के बारे में आपको पीछे बताएं कि आप वर्चुअल लेसन्स बना सकते हैं, वीडियोस बना सकते हैं। ठीक है, इसके मदद से क्या होता है कि फन के साथ आप उसको लर्न करा सकते हैं, कुछ नई चीजें सिखा सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस दैट व्हाई मल्टीमीडिया इन एजुकेशन। ओके, मल्टीमीडिया का एजुकेशन में क्या यूज है, क्योंकि फर्स्ट जो मल्टीमीडिया जैसा कि मैं आपको पहले बताया वो किसके लिए यूज होता था, इंटरटेनमेंट के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट जो है वो है यूजिंग मल्टीमीडिया इफेक्टिवली इन एजुकेशन कैन हेल्प टू इम्प्रूव द रीच एंड क्वालिटी ऑफ द एजुकेशन। मतलब हुआ कि आप एजुकेशन के रीच को ज्यादा दूर तक पहुंचा सकते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग फिजिकल क्लासरूम की बात करते हैं तो फिजिकल क्लासरूम में क्या होता है, मैक्सिमम आप 40, 45 या 60 स्टूडेंट को एक बार में बता सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। लेकिन जब हम लोग मल्टीमीडिया के थ्रू पढ़ाते हैं तो वहां लिमिट नहीं, हम हजारों को, लाखों को एक साथ, जैसे फॉर एग्जांपल आप देखते हैं कि बहुत सारे पोर्टल्स हैं या बहुत सारे आप चैनल्स बन चुके हैं एजुकेशन के लिए। जैसे इग्नू का अपना एक चैनल होता है, ठीक है, वो जब फोरकास्ट हो रहा होता है कोई लेसन तो वहां लिमिट नहीं है ना कि सिर्फ 100 लोग जुड़ सकते हैं या 100 लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। या जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई वीडियो बनाया, उसको यूट्यूब पे अपलोड कर दिया,
ओके, एजुकेशन से संबंधित। तो उसमें कोई लिमिट नहीं है कि कितने लोग उसको देखें, ये नहीं कि 100 लोग, उसमें करोड़ों अरबों लोग एक साथ देखते हैं। या और उसके बाद क्या है, उसका एक और बेनिफिट है कि एनी टाइम एनीवेयर एनीवन, ठीक है। जो हमारा एक एनी टाइम मतलब कोई टाइम बॉन्ड, जैसे आप फिजिकल टीचिंग की बात करते हैं, क्लासरूम टीचिंग की बात करते हैं, तो टाइम बॉन्ड होता है कि जिस टाइम में टीचर पढ़ा रहे हो उसी टाइम में स्टूडेंट को वहां अगर प्रेजेंट है तो वो उस लेक्चर को सुन पा रहा है, उससे समझ पा रहा है। अगर वो वहां प्रेजेंट नहीं है तो वो उसको नहीं सुन पा रहा है। तो जो ये एनी टाइम वाला कंसेप्ट क्लासरूम टीचिंग के साथ नहीं होता है, ठीक है। लेकिन जब हम लोग मल्टीमीडिया करते हैं, एनी टाइम कभी भी वो सुन सकता है, एनीवेयर कहीं से भी सुन सकता है, ठीक है। और कहने का मतलब ये है कि मल्टीमीडिया का यूज करने से जो ये टाइम बॉन्ड है या ये जो एरिया बॉन्ड है, रेंज बॉन्ड है, वो खत्म हो गया है, ठीक है। उसके बाद क्लासरूम टीचिंग में क्या होता है कि आप सारे टीचर, जैसे फॉर एग्जांपल आपके स्कूल में जो टीचर है, यानी कि जो स्टूडेंट के टीचर्स हैं सिर्फ उनसे वो पढ़ सकता है। लेकिन मल्टीमीडिया या आईसीटी की मदद से जरूरी नहीं, जैसे फॉर एग्जांपल आप एनवीएस मैसूर में पोस्टेड है या कोई स्टूडेंट है जो कि एनवीएस मैसूर में है, ओके। जब क्लासरूम टीचिंग की बात करेंगे तो वो स्टूडेंट सिर्फ मैसूर नवोदय विद्यालय में जो टीचर होंगे उनसे पढ़ सकते हैं। लेकिन जब यही टीचिंग मल्टीमीडिया के थ्रू होगा या आईसीटी के कोई मीडियम के थ्रू होगा तो यहाँ के टीचर जो है वो चाहे तो एनवीएस मणिपुर में जो टीचर पढ़ा रहे हैं उससे भी यहाँ बैठे आईसीटी के मीडियम के अनुसार वो पढ़ सकता है, ठीक है। तो ये जो बेनिफिट है, ये सारी बेनिफिट किसकी है, आपको मल्टीमीडिया की है। अगला पॉइंट क्या है कि मोटिवेट करता है सीखने के लिए, ठीक है। उसके बाद इसी तरीके से आप बाकी सारे पॉइंट्स को देख रहे हैं, हम लोग इस पे ज्यादा समय नहीं लेंगे। अब नेक्स्ट हम पॉइंट पे आते हैं, टू मेक आईसीटी इंटीग्रेशन सक्सेसफुल। अब प्रश्न आता है कि आईसीटी को सक्सेसफुल बनाने के लिए क्या चीज चाहिए, हमें किस चीज की जरूरत है हमें आईसीटी को और ज्यादा सक्सेसफुल बनाने के लिए। तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो है एप्रोप्रिएटनेस ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। आपको सबसे पहले एप्रोप्रिएट हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर आपके पास हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप आईसीटी क्लासरूम लेना चाहते हैं, आईसीटी के थ्रू आप लैंग्वेज टीचिंग कराना चाहते हैं, सबसे पहले आपको क्या चाहिए, एक कंप्यूटर डिवाइस चाहिए या कोई एक डिवाइस चाहिए जिसके थ्रू आप कम्युनिकेट कर पाए। आपके डिवाइस में एक वेबकैम होना चाहिए, एक माइक होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जैसे हम लोग अभी गूगल मीट से जुड़े हुए हैं तो गूगल मीट सॉफ्टवेयर होना चाहिए हमारे पास। तो कहने का मतलब है जो एप्रोप्रिएट सॉफ्टवेयर है और हार्डवेयर है वो सबसे पहले हमें चाहिए। और दूसरा क्या है कि वो एक्सेसिबल हो स्टूडेंट के लिए और टीचर के लिए भी। जैसे फॉर एग्जांपल आप देख पा रहे होंगे कि जब कोरोना आया, ठीक है, तो क्लासरूम टीचिंग की बात करते थे तो इजीली था, सब लोग जो बच्चे थे स्कूल जाते थे और टीचिंग मतलब कुछ लर्न करके टीचर पढ़ा करके चले जाते थे। लेकिन जब ऑनलाइन क्लासेस होने लगी तो हर एक बच्चे को क्या चाहिए, ऑनलाइन क्लासरूम से जुड़ने के लिए एक डिवाइस चाहिए, ठीक है, तो इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। तो ये सारे चीज आपको क्या चाहिए आईसीटी को सक्सेसफुल बनाने के लिए। लोकेशन ऑफ द कंप्यूटर, जो कंप्यूटर हो जो वो सही ऐसे जगह पर हो जहां से आप क्लास कम्युनिकेट कर पाए, और स्टूडेंट को क्या चाहिए कि वो सीख पाए। तो ये हो गया सक्सेसफुल आईसीटी को करने के लिए। और कुछ पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखना चाहिए। क्या, कंप्यूटर शुड सर्व लैंग्वेज टीचिंग एंड लर्निंग, विच मीन्स दैट टीचर्स शुड नो हाउ टू यूज कंप्यूटर टू फोस्टर लैंग्वेज टीचिंग एंड लर्निंग। मतलब ये है कि कंप्यूटर क्या है, आपको एक डिवाइस है जो कि आपके लैंग्वेज टीचिंग और लर्निंग को क्या करता है, तेज करता है, या मीडियम आपको प्रोवाइड करता है कि आप लैंग्वेज टीचिंग कर सके और लैंग्वेज लर्निंग कर सके, ठीक है। तो आपको
ये एक आपको पता होना चाहिए कि ये आपके लिए एक डिवाइस की तरह काम करता है, पूरी तरीके से आप इस पे डिपेंडेंट नहीं हो सकते। सेकेंड पॉइंट क्या है, द सक्सेस ऑफ आईसीटी इंटीग्रेशन इनटू द करिकुलम विल वेरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, फ्रॉम वन क्लास टू अनदर, डिपेंडिंग ऑन द वे इट इज अप्लाइड। यानी कि सेम आईसीटी डिवाइस, सेम आईसीटी मॉड्यूल्स का, सेम आईसीटी करिकुलम को हम लोग सभी पर एक समान नहीं यूज कर सकते। वो क्या होगा कि एक जगह से दूसरे, वन प्लेस टू अनदर प्लेस क्या करेगा, वेरी करेगा, उसमें डिफरेंसेस होंगे। जैसे अगर हम किसी को मणिपुरी एज अ फर्स्ट लैंग्वेज सिखा रहे हैं और किसी को मणिपुरी एज अ सेकेंड लैंग्वेज सिखा रहे हैं, दोनों को सिखाने के लिए जो हमारा आईसीटी का के जो मैनुअल्स तैयार होंगे, उसके जो करिकुलम डेवलप होंगे, उसके जो वीडियोस या ऑडियो डेवलप होगा, उसका जो एनिमेशंस होगा, उसमें क्या होगा, डिफरेंसेस होगा। उसमें भी क्या होगा, जैसे कोई बेसिक लेवल सीख रहा है, कोई एडवांस लेवल सीख रहा है, कोई इंटरमीडिएट लेवल पे है, तो उस पॉइंट पे भी उसके बीच में क्या होगा, डिफरेंसेस होगा। थर्ड वन, it is very important for the teacher to have a clear idea about when, what and where to use ICT materials. ये सबसे लास्ट लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें क्लियर कट आइडिया होना चाहिए कि कब, क्या और कहां यूज करना है। ओके, नेक्स्ट हम एक्सप्लेन करेंगे कुछ गूगल प्रोडक्ट का जिसका यूज हम लोग आईसीटी में करते हैं। आप लोग अवेयर होंगे इससे, फिर भी मैं आपको एक बता दे रहा हूं। द फर्स्ट वन इज गूगल डॉक, गूगल स्प्रेडशीट, गूगल फॉर्म, गूगल क्लासरूम, गूगल मीट, गूगल ट्रांसलेशन, गूगल जैमबोर्ड, गूगल बुक, यूट्यूब एंड गूगल साइट। ये मैं आपको गूगल का प्रोडक्ट बता रहा हूं। सेम प्रोडक्ट अलग अलग कंपनियां भी बनाती है, गूगल मैं आपको इसलिए बता रहा हूं बिकॉज इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं गूगल क्लासरूम। गूगल क्लासरूम क्या एक प्लेटफॉर्म है जिसके मदद से आप लोग ई क्लासरूम डेवलप कर सकते हैं। ई क्लासरूम का मतलब कॉन्सेप्ट ये है कि क्लासरूम में जितना काम आप करते हैं वो सारा काम आप लोग यहां पर कर सकते हैं ऑनलाइन वे में। सो कैसे गूगल क्लासरूम डेवलप करना है, तो इसके लिए मैं आपको दिखा रहा हूं। गूगल क्लासरूम के लिए सबसे फर्स्ट आपके पास क्या होना चाहिए, एक जीमेल अकाउंट होना चाहिए। ओके, जीमेल अकाउंट पे जब आप सबसे फर्स्ट यहां आप देख पा रहे हैं कर्सर को 3 डॉट है, सॉरी 9 डॉट होता है, उस पर क्लिक कीजिएगा तो आपके पास ढेर सारा ऑप्शन खुलता है। गूगल मेल, गूगल मीट, गूगल सीट, उसके बाद गूगल पावर, गूगल स्लाइड्स, सेम आपको गूगल क्लासरूम एक नीचे होता है, गूगल ड्राइव। तो आपको गूगल क्लासरूम पे क्लिक करना है। जब आप गूगल क्लासरूम पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस प्रकार की स्क्रीन खुलेगी, जहां फर्स्ट आपको क्या सेलेक्ट करना है, प्लस पे जब आप क्लिक कीजिएगा तो 2 ऑप्शन आपके पास आता है, ज्वाइन क्लास और क्रिएट क्लास। ओके, तो जब आप टीचर के रूप में जब आप यूज करते हैं तो आपको क्लिक करना होगा क्रिएट क्लास पे, और जब आप एक स्टूडेंट के रूप में लॉग इन करते हैं तो आपको क्लिक करना होगा ज्वाइन क्लास पे। जब आप क्रिएट क्लास पे क्लिक करते हैं फिर आपके सामने एक इस प्रकार का फॉर्म खुलेगा जहां आपको भरना होगा गूगल क्लासरूम के क्लास नेम। ये क्या है, रिक्वायर्ड फील्ड है, एसेंशियल फील्ड इसको हम लोग बोलते हैं। अदर फील्ड्स आर जस्ट ऑप्शनल, इफ यू वांट यू मे फिल, इफ यू डोंट वांट कीप इट ब्लैंक। ओके, आफ्टर दैट यू हैव टू क्लिक ऑन द बटन कॉल्ड क्रिएट। नेक्स्ट, जब आप क्रिएट पे क्लिक करते हैं उसके बाद आपको आपके सामने कुछ इस प्रकार की फॉर्म खुलती है, सॉरी, जहां आपको ये देख पाएंगे क्लास कोड होता है। इस क्लास कोड की मदद से आप क्लास में जुड़ सकते हैं। ठीक है, जैसे पीछे में आपको दिखाया कि यहाँ पे ज्वाइन क्लास था, जब आप ज्वाइन क्लास पे क्लिक कीजिएगा तो आपसे क्लास कोड पूछा जाएगा, तो ये क्लास कोड आपको वहां देना है। अदर थिंग यहाँ पे आप देखिए, स्ट्रीम, क्लासरूम, पीपल और ग्रेड्स, ये 4 टैब हैं। इसमें से हम लोग क्लास वर्क पे जाते हैं, तो क्लास वर्क पे जब आप क्रिएट एक बटन है जहां आप क्लिक करके देख सकते हैं आपके पास क्या क्या ऑप्शंस है, असाइनमेंट, क्यूज असाइनमेंट, क्वेश्चंस, मटेरियल और
अगला क्या है, रियूज पोस्ट और टॉपिक्स। यहाँ आप टॉपिक्स डिफाइन कर सकते हैं, किस किस टॉपिक पे आपको क्लास मतलब डिस्कस करना है। यहाँ अपने कोर्स के हिसाब से, अपने सिलेबस के हिसाब से आप असाइनमेंट दे सकते हैं, क्यूज टाइप के असाइनमेंट दे सकते हैं, क्वेश्चंस। इसके बारे में एक एक करके मैं आपको दिखा रहा हूं। जब आप असाइनमेंट पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने खुलता है फर्स्ट टाइटल, सेकंड इंस्ट्रक्शंस और ऑप्शनल होता है इंस्ट्रक्शंस। यहाँ पे आप क्यूज वगैरह बना सकते हैं और ये आप पूरे क्लासरूम को भी दे सकते हैं, ऑल स्टूडेंट, और किसी खास के लिए इंडिविजुअल भी आप असाइनमेंट दे सकते हैं, या ग्रुप को भी असाइनमेंट आप दे सकते हैं। या पॉइंट आप कर सकते हैं। आप यहाँ पे ड्यू डेट भी फिक्स कर सकते हैं कि किस डेट तक में ये असाइनमेंट आपको सबमिट करना है। नेक्स्ट, आप क्वेश्चंस यहाँ पूछ सकते हैं। क्वेश्चंस के साथ आपके पास ऑप्शंस होता है कि आप शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चन पूछ सकते हैं या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ओके, देन मटेरियल, आप यहाँ पे कोई मटेरियल भी प्रोवाइड करा सकते हैं। मटेरियल प्रोवाइड कराने का दो तरीका, एक तो क्या है कि आप यहाँ मटेरियल टाइप कर सकते हैं, या पहले से बना मटेरियल जो है वो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। ये बटन आप देख पा रहे होंगे, ये अपलोड करने का है। यहाँ से आप लिंक शेयर कर सकते हैं और अपने ड्राइव, ये आपके ड्राइव का सिंबल है, ड्राइव से भी कोई चीज आप शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि जैसे आप डेवलप किए, डिजाइन कर रहे हैं, आप इसमें टीचर्स को, जैसे एक टीचर डेवलप किया, क्लासरूम क्रिएट किया, वो दूसरे टीचर्स को यहाँ इनवाइट कर सकता है कि दोनों टीचर मिल करके इस क्लासरूम को एक्सेस करें। और इसके साथ साथ आप स्टूडेंट को भी इनवाइट कर सकते हैं। इनवाइट करने का तरीका क्या है, यहाँ आप प्लस सिंबल देख पा रहे होंगे, यहाँ क्लिक करके उस टीचर्स का ईमेल आईडी पर आपको उसका एक बॉक्स खुलेगा, वहां आपको अपना उसका ईमेल आईडी उस टीचर्स का देना है, तो आप उनको इनवाइट कर सकते हैं। नेक्स्ट गूगल डॉक है, जिसके बारे में आप लोग जानते हैं। गूगल डॉक क्या होता है, कोई भी डॉक्यूमेंट डेवलप करने के लिए, कोई आपको लेटर लिखना है या कोई भी डॉक्यूमेंट आपको डेवलप करना है तो आप गूगल डॉक पे के थ्रू डेवलप कर सकते हैं। ये सेम वैसा ही है जैसा आप MS वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज करते हैं। अंतर क्या है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो होता है वो ऑफलाइन काम करता है और गूगल डॉक जो है वो ऑनलाइन काम करता है। इसकी बेनिफिट क्या है, इसमें ऑटो सेव का ऑप्शन आपके पास होता है। और दूसरा क्या है कि एक टाइम में कई लोग इसको एडिट कर सकते हैं, कई लोग एक ही डॉक्यूमेंट पे कई लोग एक साथ काम कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है गूगल स्प्रेडशीट। इसकी मदद से आप कई लोग एक साथ काम कर सकते हैं। गूगल शीट, ये सेम जैसे एक्सेल शीट होता है उसी तरीके का शीट है। नेक्स्ट है गूगल स्लाइड, जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस की बात कर रहे थे, PPT, आप गूगल स्लाइड की मदद से उसको डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट गूगल फॉर्म है, इसके बारे में आप लोगों को मालूम ही होगा कि अगर आपको कोई सर्वे करना है, ठीक है, या कोई केस स्टडी करना है, इस तरीके की चीजें आप गूगल फॉर्म से कर सकते हैं। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट, जिसका यूज हम लोग करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में भी, वो है गूगल ट्रांसलेट। गूगल ट्रांसलेट की मदद से आप क्या कर सकते हैं, ट्रांसलेशंस का यूज कर सकते हैं। ये मशीन ट्रांसलेशन का एक टाइप हो गया गूगल ट्रांसलेट, ऑनलाइन ट्रांसलेट। नेक्स्ट यूट्यूब, इसके बारे में आप वाकिफ है। यूट्यूब में हम लोग क्या करते हैं, कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं और कोई वीडियो को देख सकते हैं। तो आप इसका यूज कैसे कर सकते हैं, अगर आपको मणिपुरी लैंग्वेज सिखाना है तो मणिपुरी लैंग्वेज सिखाने के लिए आपको अपना वीडियो बना करके उसको एडिट करके या सिर्फ रिकॉर्ड करके आप चाहे तो उसको अपलोड कर सकते हैं। बाकी लोग जो है उसको देख करके सीख सकते हैं, बेनिफिट ले सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ चीजें हैं जिसको, जैसे आपका हो गया मॉडल्स, जी सूट, जिसके थ्रू आप ये कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 जो है, इसको आप जब पढ़िएगा, आप लोग लगभग लोग पढ़े होंगे, तो वहां पे आप देख पा रहे होंगे 23.1, पूरा 23rd पॉइंट जो है वो क्या है, पूरी तरीके से टेक्नोलॉजी यूज एंड इंटीग्रेशन पर ही है। इसमें क्या कहा गया, इंडिया इज द ग्लोबल लीडर इन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड in other cutting edge domains such as space.
the Digital India campaign is helping to transform the entire nation into a digitally empowered society and knowledge economy. While education will play a critical role in this transformation, technology itself will play an important role in the improvement of educational processes and outcomes. Thus, the relationship between technology and education at all levels is bidirectional. कहने का मतलब क्या है कि एजुकेशन क्या है, टेक्नोलॉजी को मदद कर रहा है, और टेक्नोलॉजी क्या है, एजुकेशन को मदद कर रहा है। बाय डायरेक्शनल कम्युनिकेशन दोनों के बीच में हो रहा है, और एक की जो डेवलपमेंट से एजुकेशन जैसे से डेवलप होगा, हमारा टेक्नोलॉजी भी उसी प्रकार से डेवलप होता जाएगा, और जैसे से हमारा टेक्नोलॉजी डेवलप होगा उसी की तरह से हमारा एजुकेशन भी डेवलप होता जाएगा, और हमको करना चाहिए। इसके अलावा और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में नेशनल जो नया एजुकेशन पॉलिसी है, यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, उसमें डिटेल्स से बताया गया है। इसमें कुछ पॉइंट्स जो स्पेशल फोकस किया गया है वो क्या है कि हमें क्या करना है, इंश्योर इक्विटेबल यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, ऑनलाइन एंड डिजिटल एजुकेशन को इम्प्रूव करना है और ज्यादा डेवलप करना है। पायलट स्टडीज हो रहा है ऑनलाइन एजुकेशन के लिए, और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है। क्या जो स्कूल है, कॉलेजेस है, वहां पे हमें क्या करना है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, जिससे क्या होगा, आईसीटी की और ज्यादा विकास होगा। ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म और टूल्स के बारे में भी बात की गई है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में। स्पेशली उसमें 2 पॉइंट दिया गया होगा, एक दीक्षा स्कूल एजुकेशन के लिए, दूसरा स्वयं, आप लोग वाकिफ होंगे स्वयं। इसके अलावा आप देखिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आने से पहले ही ईपीजी पाठशाला, जो कि पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल्स के स्टूडेंट के लिए ई लर्निंग के लिए आया। बहुत सारे ई लर्निंग पोर्टल्स हैं, कुछ प्राइवेट पोर्टल्स हैं, कुछ गवर्नमेंट सपोर्टेड पोर्टल्स हैं, ठीक है, जिसके मदद से हम लोग क्या कर रहे हैं, लैंग्वेज टीचिंग को या कोई भी टीचिंग को इम्प्रूव, टीचिंग एंड एजुकेशन को डेवलप कर रहे हैं। उसके बाद क्या है, वर्चुअल लैब डेवलप करने की बात की जा रही है। ट्रेनिंग एंड इंसेंटिव्स फॉर टीचर्स को आईसीटी पर काम करने के लिए उनको ट्रेनिंग दिया जा रहा है, कैसे आपको वीडियोस बनाने हैं, कैसे टेक्नोलॉजी का यूज करना है, किस प्रकार के वीडियोज होने चाहिए, कैसे ऑडियो होना चाहिए, बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए, वीडियो का एडिटिंग किस प्रकार से होना चाहिए। इसके लिए बाकायदा बहुत सारे कोर्सेस और बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम और वर्कशॉप डेवलप होता है, जो स्पेशली किसके लिए होता है कि हाउ टू डेवलप ई मटेरियल्स या हाउ टू डेवलप ई कंटेंट्स। इस पे बहुत सारे वर्कशॉप आप देख पा रहे होंगे स्कूल टीचर्स के लिए या हाई मतलब क्या बोलते हैं कॉलेज के टीचर्स के लिए डेवलप होता है। और इसके साथ ऑनलाइन असेसमेंट एंड एग्जामिनेशंस की बात की जा रही है। आप देख पा रहे होंगे आज बहुत सारे जो एग्जामिनेशंस होता है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होता है, वो ऑनलाइन कंप्यूटर के माध्यम से होता है, तो उसको और ज्यादा कैसे डेवलप किया जाए, ठीक है। इसी तरीके से जो स्टैंडर्ड्स है आईसीटी के, उसको कैसे डेवलप किया जाए, तो इन सब चीजों के बारे में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 पे बात की गई है। अब इतने देर हम लोग देखें कि जब हम लोग बात करते हैं साइबर वर्ल्ड की या आईसीटी के, तो उसके साथ जुड़ा हुआ हमारा क्या है कि साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड चीज भी हमारे पास साथ में आता है कि सेफ्टी और सिक्योरिटी कैसे होगा। जैसे हम मोबाइल गैजेट्स अपने बच्चों तक को दे दिए हैं, जिनको उनका यूज करना या उनको बहुत सारे चीज साइबर रूल्स के बारे में या साइबर क्राइम्स के बारे में नहीं मालूम है, तो उसके बारे में भी अवेयर करना हमारा काम है कि हम क्या करें, या टीचर जो क्लासरूम जो आईसीटी के टीचर्स हैं उनको इसके बारे में भी जानकारी होना चाहिए। तो उसके बारे में आपको बता रहा हूँ, स्पैम मेल होता है, स्पैम के बारे में आपको पता है। सेकेंड वन फिशिंग होता है, साइबर बुलिंग होता है, इसके बारे में आप लोगों को जानकारी होगा, ये कोई नई टर्मिनोलॉजी नहीं है। साइबर बुलिंग क्या होता है, स्पैम क्या होता है कि, और फिशिंग में जैसे कोई एक मेल होता है जिसके थ्रू आपको लुभावना वो दिया जाता है, आपको फंसाया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल दे दिया गया कि आपने 1 करोड़ रुपए जीत लिया है, आप इस लिंक पे क्लिक कीजिए और अपना इंफॉर्मेशन आप उसमें भरिए और आपको 1 करोड़ रुपए मिल जाएगा। जबकि आप उसमें इंफॉर्मेशन भरते हैं तो वो आपका क्या करता है, डेटा कॉपी करके चोरी कर लेता है। या कुछ मेल आपको भेजा जाता है जिसमें अटैच कुछ वायरसेस फाइल आपके
फाइल के साथ, मतलब उस मेल के लिंक के साथ होता है जो आपको क्या करता है, फंसाता है। इसके अलावा साइबर बुलिंग होती है। साइबर बुलिंग में मतलब क्या है कि आपको ऑनलाइन कोई परेशान कर रहा है, ठीक है, तो ये हो गया आपको साइबर बुलिंग। इसका तरीका क्या इससे बचने का, कि आप उसको रिस्पॉन्ड मत करें, आप उसका स्क्रीनशॉट ले, आप अवेयर हो उसके बारे में, उसको क्या करें, ब्लॉक और रिपोर्ट करें, उसके बारे में बात करें, और अपनी ज्यादा से ज्यादा सारी इंफॉर्मेशन आपको सोशल मीडिया, जैसे कि इसमें आगे बात करा था, सोशल मीडिया पे अपनी सारी इंफॉर्मेशन आपको नहीं देनी है। अपने इंफॉर्मेशन को जो प्राइवेट रखने लायक इंफॉर्मेशन है, कोशिश करें कि आप उसको प्राइवेट रखें। और अगला पॉइंट जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे थे था कि सोशल मीडिया के थ्रू भी आप क्या कर सकते हैं, टीचिंग एंड लर्निंग को बढ़ा सकते हैं। इससे बहुत सा सोशल मीडिया कहने का मतलब है कि आप ब्लॉगिंग की मदद से, ठीक है, आप ब्लॉग डेवलप कर सकते हैं लैंग्वेज टीचिंग के लिए। जैसे आप छोटी छोटी चाइल्ड बच्चों की जो स्टोरी होती है, आप पहले उसको वो लैंग्वेज सिखा दिए बच्चों को, फिर उसके वर्ड स्टॉक को बढ़ाने के लिए आप क्या कीजिए, एक ब्लॉग डेवलप कीजिए, जिस ब्लॉग में आप उस लैंग्वेज की जो कहानियां हैं, ठीक है, वो आप पोस्ट कीजिए और अपने स्टूडेंट को कहिए कि उस कहानी को पढ़े। उसका इससे जो दो बेनिफिट होगा। क्या बेनिफिट होगा कि बच्चे स्टोरी पढ़ेंगे तो उनको कुछ ज्ञान भी मिलेगी और साथ में उनका वर्ड स्टॉक जो है वो भी बढ़ेगा। तो ये पूरा जो था वो आईसीटी था,